إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے دین اسلام، اس دین اسلام پر ہمیں چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریقہ یعنی آپ کی سنت ہمیں عطا فرمائی۔ ایک مسلمان کو اس کا اپنا کنسپٹ بہت صاف رکھنا چاہیے، اس کا موقف بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ اسلام پر ہمیں چلنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن نازل فرمایا ایسے قرآن پر چلنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو آپ پر جب طریقہ اترا قرآن کے حکم پر چلنے کا، اللہ کے حکم پر چلنے کا، تو اسی کا نام ہے سنت، اسی کا نام ہے اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ہر حال میں، ہر طرح کی صورتحال میں، ہر طرح کے ماحول میں، ہر طرح کی سوسائٹی میں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نمونہ موجود ہے۔ آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کے عقیدوں کی زندگی، آپ کی عبادتوں کی زندگی، آپ کے معاملات کی زندگی، آپ کے اپنے گھر سے لے کر کے اپنے ساتھیوں تک، اپنے پڑوس تک، اپنوں سے لے کر کے غیروں تک، یعنی صحابہ سے لے کر کے غیر مسلمین تک،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے. ہمیں جب بھی کسی بات کا سامنا ہو، جب بھی کسی صورتحال کا سامنا ہو، ہمیں نہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، تو کم سے کم یہ تو ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ تو ہماری سمجھ میں بات بہت صاف صاف رہنی چاہیے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. تو یہاں بھی آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہوگا. ہو سکتا ہے ہم کسی وقت، کسی موڑ پر، کسی الگ الگ صورتحال میں، کسی غیر معمولی یا مطلب غیر متوقع، جو ہم سوچتے نہیں کہ ایسا بھی ہوگا، اس طرح کی صورتحال کا ہم فیس کرتے ہوں، سامنا کرتے ہوں. لیکن ہمارا ایک مطلب نظریہ، ایک ہمارا کنسپٹ بہت کلیئر رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے، سوچ لیجئے کہ آپ کس حال میں ہیں، ہم کس حال میں ہیں، اور پھر دیکھیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے کہ نہیں ہے. اتنا جامع اور کامل نمونہ آپ کو ملے گا. علم کی ضرورت ہے، علماء سے رابطے کی ضرورت ہے، صحیح سوچ کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں مل جائے گی رہنمائی. اسی لیے ایک مسلمان جب اپنے عقیدے اور اپنے نظریے میں مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس کی جڑیں، وہ بہت مضبوط جڑوں سے جڑا ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور وہ بہت مضبوط جڑوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہے. اور جب کوئی تنا جو ہے اپنی مضبوط جڑوں کے ساتھ، مطلب گہری جڑوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. ہماری جڑیں بہت گہری ہیں. آپ دیکھیے، ہم اگر کسی قسم کے غیر متوقع صورتحال سے دوچار ہیں تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کیا حالات تھے، کس طرح کے حالات تھے، پھر ان حالات میں ان کا طریقہ کار کیا تھا. وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں یہ بھی حالت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مجبور ہیں کہ آپ اپنا پیارا اور محبوب وطن چھوڑ دیں. آپ دیکھیے یہ کون سی منزل ہوتی ہے، کون سا وقت آتا ہے ایسا کہ جب ایک انسان کو اس کی اپنی بستی، اس کا اپنا پڑوس، اس کا اپنا وطن، اپنا سارا سیٹ اپ، اپنی فیملی، رشتہ داروں اور اپنے سارے مسائل، یا کہتے ہیں سارے سیٹ اپ سے آدمی اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے اور دور نکلنے کی اب کوشش کرتا ہے. ایسی صورتحال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے. اگر اسی بستی اور اسی شہر میں رہتے ہوئے بہت سارے مشکل حالات ہیں تو بہت سارے مشکل حالات میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. ایسے حالات تھے. ہم تو بہت پروپیگنڈوں کے شکار ہو جاتے ہیں، خود بھی پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں اور خود بھی متاثر ہو جاتے ہیں، متاثر کرنے لگتے ہیں، لوگ ہمیں متاثر کرنے لگتے ہیں. لوگ بہت ساری سوچ رکھنے والے، بہت سارے نظریات رکھنے والے، الگ الگ نقطۂ نظر سے کام کرنے والے، وہ سمجھ کے کرتے ہوں، ناسمجھی میں کرتے ہوں، لیکن متاثر ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، مشکل حالات میں آپ کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات کو بدلتا ہے. مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی لاتا ہے. اللہ تعالیٰ حالات ایسے لاتا ہے، وہ اس لیے لاتا ہے کہ وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ جس کو آپ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ کہتے ہو، جس کے بارے میں آپ کہتے ہو یہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہمارے مال سے بھی زیادہ عزیز ہے ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، تو ایسے حالات اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دعوے کے مطابق آپ اپنے آپ کو ثابت بھی کرو گے کہ نہیں ثابت کرو گے. ایسے حالات اللہ تعالیٰ لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ حالات لاتا ہے ایسے، اور کہتا ہے کہ تم نے جب ہم کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو یہ بات تمہاری کافی نہیں ہے.
फिर तुम्हें अल्लाह ताला आजमाएगा। तो आजमाइश के हालात आते रहते हैं, आजमाइश के हालात से आदमी बच नहीं सकता है, लेकिन उस आजमाइश के हालात में उसके लिए देखना है कि उसे करना क्या है। जहां यह तय करना हो कि हमारे लिए सबसे कीमती क्या है, वहां तो अल्लाह ताला यह चाहता है कि आप अपने दावे के मुताबिक दिखाओ कि हां आपके नजदीक सबसे कीमती चीज क्या है। आपके लिए कीमती पैसे हैं कि आप उसके लिए ईमान बेच देंगे। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए, इस तरह की सूरत हाल से अल्लाह ताला बचाए, इस तरह की मुश्किल घड़ियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और ऐसी आजमाइश वो ना हमारी करे, हाँ, जिस आजमाइश में हम कमजोर पड़ जाएं अपनी कमजोरी की वजह से। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का दीन हमारी जान से अजीज है, हमारे माल से अजीज है, अल्लाह से मोहब्बत हमें हर चीज से ज्यादा है, रसूल हमारे सबसे महबूब है, हमारे जान और माल, आलो औलाद, अहलो अयाल, माँ बाप से भी सब आप पर कुर्बान, इतनी मोहब्बत है हमें। तो मोड़ आते हैं कभी कभी अल्लाह की तरफ से जिंदगी में कि अल्लाह ताला आजमाता है कि आप अपने दावे में कितने पक्के हो, कितने सच्चे हो। तो वो घड़ी हमारे इम्तिहान की होती है। ऐसी घड़ियों में हमें अल्लाह ताला के दीन से मोहब्बत और अपने अकीदे और अपने दावे के मुताबिक हमें अल्लाह ताला से साबित कदमी का सवाल करके दुआएं करते रहना चाहिए, साबित कदमी और इस्तिकामत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। देखिए, दुनिया ये ईमान वाले अपने ईमान की बुनियाद पर ये मानते हैं, हम मानते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी कुछ हैसियत नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया क्या है, एक मुसाफिर चलता हुआ कहीं थोड़ा सा साया ले ले, कहीं थोड़ा सा साया ले ले, गोया की मिसाल दिया आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना भी इसका पीरियड नहीं है आखिरत के मुकाबिल में, यानी इसका जो परसेंटेज है इतना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे समझाया जाए? आखिरत के मुकाबिल में दुनिया की जिंदगी कितनी लंबी है, आखिरत समंदर है और दुनिया का वक्त एक सुई डुबो करके, उंगली डुबो करके आप जितना पानी समंदर से निकाल ले वो उतना ये दुनिया का टाइम है, ये दुनिया का टाइम है। जो मोमिन ये ईमान रखता हो कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबिल में हमारे इतनी मुख्तसर है कि एक सवार सवारी करके जा रहा है, सफर पर है और थोड़ी देर सांस लेने के लिए, थोड़ा सा साया लेने के लिए कहीं रुक गया और निकल गया फिर सफर पर, इतनी मुख्तसर ये है जिंदगी। और जो ईमान ये रखता हो कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए हमारे लिए जन्नत बनाई है, ईमान वालों के लिए जन्नत बनाई है, वो जन्नत की लालच में, वो जन्नत जिसका जो बहुत महंगा सौदा है, जिसको खरीदने के लिए जान माल सब कुछ लगा दिया जाए तो बदल नहीं हो सकता कि उसके बदले में जन्नत ले ले। लेकिन अल्लाह ताला आजमाता है दिलों को और जज्बात को, अपने तकवा को, फिर उसकी रहमत होती है तो जन्नत मिलती है। आपने फरमाया मुझे मेरे अमलों के बदले में भी जन्नत नहीं मिलेगी, अमलों से जन्नत नहीं मिलती, अमलों से अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह की रहमत, फर्माबरदारी, ताब्बुत, उबूदियत साबित करता है बंदा कि हम अल्लाह तेरे फर्माबरदार हैं, तो रब की मेहरबानी होती है, तो रब की मेहरबानी होती है, फिर अल्लाह ताला जन्नत देता है। जन्नत बहुत बड़ा इनाम है रब्बुल आलमीन का। तो उस इनाम के लिए दुनिया की कोई हैसियत एक मोमिन की नजर में नहीं होती। इसीलिए जब उसकी नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती तो उसकी लड़ाई कोई सियासत के लिए नहीं होती कि वो सियासत के लिए लड़ता है कि सियासत नहीं मिली उसे तो उसे कुछ नहीं मिला, हाँ, उसे हुकूमत नहीं मिली तो उसे कुछ नहीं मिला। वो इसलिए नहीं लड़ता, अपनी जिंदगी का असल टारगेट ये नहीं बनाता कि दुनिया में उसकी कितनी पोजीशन बुलंद हो जाए, कितना बड़ा हो जाए। अल्लाह ताला दुनिया में कहता है कि दुनिया में अपना हक, अपना हिस्सा हासिल करो, जद्दोजहद करो दुनिया में, लेकिन असल जो हिस्सा आखिरत का है, असल जो आखिरत है उसको मत भूलना। आदमी आखिरत भुला दे, हको इंसाफ भुला दे, अकीदो दीन बर्बाद कर दे इस दुनिया के लिए, तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े घाटे में चला गया, बर्बाद हो गया।
यानी उसने अपने आप को बर्बादी की राह पर डाल लिया। जिसने दीन, ईमान, अदल, इंसाफ, सच्चाई छोड़ करके अपनी दुनिया बनाने या दुनिया बुलंद करने के लिए उसने छोड़ दिया, उसने हक को इंसाफ छोड़ दिया, तो वो घाटे की राह पर, बर्बादी की राह पर चला गया। और जब वो चल पड़ा उस राह पर तो अल्लाह ताला ने उसे ढकेल दिया, अल्लाह ताला ने उसके लिए वो रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म हिदायत के खिलाफ अपने लिए दुनिया का रास्ता तय किया। तो मेरे भाइयों, दुनिया असल हम ना समझे। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें ये दुनिया और ये दुनिया का कर्रोफर, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया की आसाइशें, ये तुम्हें धोखे में न डाल दे। हम कहां धोखे में पड़ गए? दुनिया ही के लिए हम सब धोखे में पड़ गए। आमतौर पर हम दुनिया ही के लिए धोखे में पड़े हैं। और दुनिया के लिए धोखे में पड़ने का यह माना है कि हम दीन बेच करके दुनिया करें, हम ईमान बेच करके दुनिया बनाएं, हम ईमान बेच करके सियासतें करें। मेरे भाइयों, वसूल और हक बेच करके हम सियासतें करें, तो ये दुनिया के पीछे लगना है। वरना दुनिया बनाना, सियासतें करना, दुनिया में अपना हिस्सा लेना, आखिरत की हिफाजत और फिक्र के साथ, अल्लाह ताला ने हमें इसकी इजाजत दी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो हमें मना नहीं किया, हमें दुनिया से अपना हिस्सा हासिल करने के लिए हिर्स, जद्दोजहद की इजाजत दी, लेकिन उसके साथ नुक्ते नजर क्या है वो तय करने की हिदायत दी है, किस नुक्ते नजर से काम हो रहा है। और जब हम दुनिया में मेरे भाइयों जीते हैं, हमारा एक नुक्ते नजर होता है, वो नुक्ते नजर ये कि ये दुनिया फानी है, खत्म हो जाने वाली है। और सिर्फ ये नुक्ते नजर हम नहीं लेकर के चलते हैं, इस नुक्ते नजर के मुताबिक रात दिन हम मुशाहिदे करते रहते हैं। रात दिन कितनों का जनाजा आप पढ़ते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये बीमार नहीं थे, इनको कोई मुज़मिन रोग नहीं लगा था, कोई बड़ी बीमारी नहीं लगी थी, कोई ये डायबिटीज पेशेंट नहीं थे, कोई हार्ट पेशेंट नहीं थे, कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, अचानक मर गए। उम्र क्या थी? अभी तो नौजवान थे, अभी जवान थे, अभी बीच उम्र थी उनकी, अभी बच्चा था आदमी, अभी बच्चा था, ये मर गया। रात दिन का मुशाहिदा है हमारा आपका, रात दिन का। ये रब्बुल आलमीन रात दिन इस तरह हमें दिखाता रहता है ताकि जो नजरिया आपका है वो मुशाहिदे से देख करके वो नजरिया आपका और मजबूत रहे। कितने लोग सेहतमंद हमारे भाई होते हैं, अचानक पता चलता है कि एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए, बहुत बड़ी बीमारी थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, रवा दवा थे, चलते फिरते थे, अपनी मामूलाते जिंदगी से जुड़े हुए थे, अचानक पता चलता है हाँ कि कोई बहुत बड़ी बीमारी उनको लग गई। आदमी चलता फिरता है, अपने कारोबार में लगा है, कहीं ऐसा होता है कि आदमी बहुत नीचे है, बहुत बुलंद हो गया, कहीं बुलंदी पर है कारोबार की, बहुत पस्ती में चला गया। ये सब अल्लाह ताला की सुन्नतें हैं, ये अल्लाह ताला का कानून है जो चलता है और हम रात दिन देखते रहते हैं। तो हमारा जो नजरिया है उस नजरिए को अल्लाह ताला हमें रात दिन मुशाहिदात से भी गुजार करके वो चाहता है कि इसको मजबूत रखो। देखो, मौत का कुछ ठिकाना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में फरमाते थे, हर खुतबे में आयत पढ़ते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, हर वक्त अल्लाह का हुक्म, हर घड़ी अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी में रहो, उसकी नाफरमानी से बचते रहो हर वक्त, ताकि जब भी तुम्हारी मौत आए तो तुम मुसलमान मरो। यानी अल्लाह ताला की वसीयत है कि मुसलमान ही मरना, और मुसलमान मरने के लिए जरूरी है कि एक मुसलमान मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। अनपढ़ भी कैसे मुसलमान होते हैं? अल्लाह ताला अनपढ़ों का भी ईमान कैसा मजबूत रखता है। हदीस में आता है जब दज्जाल आएगा तो जो अनपढ़ होंगे, अनपढ़ जिन्हें पढ़ना नहीं आता होगा, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी बसीरत और ऐसा वो
अता फरमाएगा कि वो दज्जाल की पेशानी पर लिखा हुआ काफिर पढ़ेंगे, वो पढ़ लेंगे। ये ईमान की बरकत है, ईमान का ये खैर है। तो इससे भी साबित होता है कि कितने ईमान वाले ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ईमान है उनका और फिक्र है उनकी, तो वो रात दिन अल्लाह की फर्माबरदारियों में रहते हैं, नाफरमानियों से बचते रहते हैं। और ऐसे ही लोग जब मरेंगे तो इस्लाम पर मरेंगे। कौन मरेगा इस्लाम पर? कौन दीन पर मरेगा? मरने का वक्त मालूम नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, कब मरेगा? जवान है अभी, जवानी ही में मरेगा। अभी कल हम लोगों ने जनाजा पढ़ा, पूरे घर में जो सबसे छोटी उम्र का भाई था उसकी मौत हो गई। सारे बड़े लोग हयात हैं और पता चला कि उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो मौत का कोई ठिकाना नहीं। और हमें जिंदगी के हर तरह के हालात में यही फिक्र करनी चाहिए, यही फिक्र करनी चाहिए कि किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं। ये दुनिया है, आजमाइश की जगह है। सेहत है तो बीमारी का ठिकाना नहीं, जिंदगी है तो मौत का ठिकाना नहीं। अगर मालदार हैं तो गरीबी का पकड़ लेगी, इसका ठिकाना नहीं। कोई किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं हर वक्त। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हम ईमान वालों को मुखातब करके नसीहत किया। हम ईमान वालों को कहा, ईमान वालों तुम अपने अल्लाह से डरते रहो, यानी उसका कहा मानो, उसका हुक्म मानो, जिसका हुक्म दिया उसकी पाबंदी करो, जिससे रोका उससे बचो। हमें मालूम है किससे रोका है उसने, हमें मालूम है किस बात का हुक्म दिया है। उसने हुक्म दिया है हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स का ईमान है अल्लाह पर, तो उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो अच्छा रहे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा करे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना ये ईमान की निशानी है। वो पड़ोसी कौन है? वो पड़ोसी कौन है? जहन में हमारे हिंदू मुस्लिम हिंदू का जहर नहीं ऐसा भर सकता कि अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, तो उस जहर की वजह से उसका हक हम भूल जाएंगे। नहीं भूल सकते। हमारा साथी हमारे साथ रात दिन रहता है, हमारा साथी हमारे सबसे बेहतर सलूक का मुस्तहिक है। हम कितना अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने साथियों के साथ अच्छा सलूक करता हो वही सबसे अच्छा है। क्यों? अगर अपनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता तो गैरों के साथ अच्छा सलूक करने का कहां मना किया है शरीयत ने। लेकिन जिसका हक सबसे पहले है, जो सबसे ज्यादा करीबी है, वो तो सबसे ज्यादा हकदार है। और हमें देखिए नसीहत करता है दीन हमारा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत करते हैं कि जिनके हुकूक हमारे ऊपर हैं वो चाहे जैसा हक बनता हो। एक पड़ोसी है तो उसका हक बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर में सालन पकता हो तो थोड़ा पानी बढ़ा दो ताकि अपने पड़ोस को तुम दे सको। थोड़ा बढ़ जाएगा पानी, सालन बढ़ जाएगा तो तुम्हें अपने पड़ोस को देना आसान होगा। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? कोई भी हो, मुसलमान हो यानी अपना हो, ईमान वाला भाई, मुसलमान ना हो, यहूदी हो, मुसलमान ना हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई पंजाबी हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब का, हत्ता कि ला मजहब हो, दारिया हो, किसी भी मजहब को ना मानता हो, तो भी ईमान का तकाजा है कि आदमी अपने पड़ोस का ख्याल रखे। पड़ोसी सबसे बड़ा पड़ोसी और असल पड़ोसी कौन है? जिसका दरवाजा हमारे दरवाजे से करीब हो, वो चाहे जो हो, वो चाहे जो हो। ये हमारे लिए हिदायत है, ये हमारे लिए तालीम है। हजरत जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के ताल्लुक से इस तरह वसीयत करते थे, इस तरह अल्लाह की तरफ से नसीहत करते थे। बड़ा हक है पड़ोसी का। क्या फरमाते हैं कि मुझे डर लगा कि कहीं पड़ोसी को वारिस न बना दे। देखें हमारे पड़ोसी हमसे कितना खुश हैं,
कितना खुश ना हो तो भी हमारा दीन और इस्लाम के हवाले से उनके साथ सलूक कैसा है, बर्ताव कैसा है। हम बहुत सारे प्रोपेगेंडों का शिकार होते हैं। हम प्रोपेगेंडों से जल्दी मुतासिर होने वाले नहीं होते। दीन जितना मजबूत होता है उतना ही हमारे अंदर मजबूती होती है। जितना हम अपनी असल जड़ों से जुड़े रहते हैं, अकीदे से, दीन से, तौहीद से, अपने उलमा से, अपनी जमात से, उतना ही हमारी मजबूती होती है। तो कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी फ्रंट हमारे नौजवानों को बहका नहीं पाता है। कब बहका ले जाते हैं ये? जब हम अपने असल रिश्ते से कट जाते हैं, अपने असल नेटवर्क से कट जाते हैं। जब कट जाएंगे तो कोई भी हमारी हैसियत उस पतंग की होगी जिसकी डोरी कट गई हो, कहीं भी चला जाएगा। तो हमारे लिए हिदायत है, इसीलिए हिदायत है हमारे लिए कि हम अपने आप को उलमा से जोड़े रखें, अपनी जमात से जोड़े रखें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके बताया, आपने मिसाल दे करके बताया, कहा देखो एक रेवड़ होता है, एक रेवड़ बकरियों, भेड़ का एक रेवड़ है, बकरियों का एक रेवड़ है, बकरियों की एक रेवड़ है। एक बकरी अगर अपने ग्रुप से निकल करके अलग चरने चली जाएगी, अलग रुख पे चली जाएगी अकेले, और वो ग्रुप और पूरी जत्था और पूरे रेवड़ से अपने आप को अलग कर लेगी, तो आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हश्र क्या होगा? उसका हश्र ये होगा कि कोई भी भेड़िया उसको शिकार कर लेगा, कोई भी भेड़िया उसको अगवा कर लेगा, उचक लेगा। ऐसे ही जिंदगी हमारी है। हमारे लिए जो हिदायतें उनका ख्याल रखना जरूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को हर तरह के हालात में तरबियत करते थे। तो इस तरह तरबियत करते थे कि कोई भी मसला उनके सामने आता था तो आकर के आपसे तय करा लेते थे कि ये सही है या नहीं है। जब भी हमारे सामने ऐसी सूरत हाल हो, हम जीते हैं अपने मुल्क में, हमारी एक बड़ी अक्सरियत के मुकाबिल में हम बहुत छोटी तादाद में, हमारा छोटा परसेंटेज है। हम छोटे परसेंटेज में कैसे रहेंगे? क्या हुकूमत से लड़ना, हुकूमत मुखालिफ सूरत हाल और हवाओं में बहना, किसी भी आवाज के पीछे भागना, हमारी किसी भी हुकूमत के साथ कौन सा पेटेंट है, कौन सा मतलब ऐसा मुआहिदा है? ये रोज अपनी सियासतें बदलते हैं। तो मुसलमान भी अपने हालात और अपने क़यादत और अपने उलमा की रहनुमाई में अपनी भी राय रखेगी कि नहीं रखेगी। तो ये सब सूरत हाल में हमें बहुत संजीदा और बहुत समझदार होकर के काम करने की जरूरत है। और आखिरी बात ये कह करके कि देखिए, हमें अल्लाह ताला ने हमारे अखलाक और हमारी नेकियों और हमारी हमदर्दियों और हमारे एक दूसरे से काम आने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें बड़े बड़े अजर का वादा किया है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कुछ लोगों के बीच में आए, आपने खड़े होकर के नसीहत करना चाहिए। तो आप फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ कि क्या मैं ना तुम्हें बताऊं कि तुम में बुरों में अच्छा कौन है? 3 बार आपने ऐसा पूछा। क्या मैं ना तुम्हें बता दूं, तुम्हें ना खबर दे दूं कि बुरों में तुम में अच्छा कौन है? 3 बार आपने ऐसा कहा, सब लोग खामोश थे। फिर एक सहाबी रसूल बोल रहे हैं, भला या रसूल अल्लाह बता दीजिए कि बुरों में अच्छा कौन होता है। तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया जिस शख्स से लोग अच्छी उम्मीदें रखें और उससे किसी भी नुकसान के ताल्लुक से बेफिक्र हो, कोई नुकसान नहीं करेगा बल्कि उससे अच्छी उम्मीद है। तो आपने फरमाया वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा कौन है? कभी देखिए, हम अपने आप को टटोले देखें, क्या हमसे लोग अच्छी उम्मीद रखते हैं? क्या हमसे लोग मुतमईन हैं कि हम कोई नुकसान नहीं करेंगे? तो आपने फरमाया सबसे अच्छा तुम में वो है। और आपने फरमाया तुम में सबसे बुरा वो है जिससे लोग भलाई की उम्मीद ना रखें और जिसके शर से वो मामून ना हो। क्या नुकसान पहुंचा देगा कुछ ठिकाना नहीं। ये सोच अगर है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो सबसे बुरा है जिससे भलाई की उम्मीद ना हो और ऊपर से डर लगा हो कि पता नहीं कहां धोखा दे देगा, कहां चोट लगा देगा, जिसको यहां की जबान में बोलते हैं कहां चूना लगा देगा।
اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو اس طرح جینے کی، اس طرح رہنے کی توفیق دے کہ لوگ ہم سے اچھی امید رکھیں اور ہم سے وہ مطمئن ہو کہ یہ نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک جگہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان یا عام انسان مومن وہ ہے جس سے لوگ مطمئن ہو کہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے جو بھی اس کے پاس پاور ہے نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اس سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہر طرح کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہر طرح کے حالات میں آپ کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، تقوی پر رکھے اور ایمان پر رکھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رکھے، مسلک سنت پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔